Beta, the story A Triumph of Surgery. This story is all about being overindulgent, as I was telling you in the last class. Up, the title says A Triumph. Triumph means victory. Surgery means hospital. So this is a victory of hospital. The ironical thing in the title is this, that when we go to a hospital, then we get medicinal treatment. But here, the doctor did not give any medicinal treatment to the dog. And the dog was all okay. And the dog was all fine. So, beta, this title has a tinge of irony that in the hospital, he got fully well without any medicinal treatment. Now, we will read about the different characters. Acha, keep one thing in mind, that for this book, every lesson has at least two basic questions. And the long answers are from these basic questions. The first question of this chapter is about the character sketch. Character sketch of the doctor. Or it can be the character sketch of the woman and Mrs. Pamphry. And the second question, which is very, very important for this chapter again and again, and that is, beta, how is overindulgence injurious? So we are going to get a view of the character sketch of our Dr. James Herriot. So James Herriot is a veterinary surgeon. He is an expert in his work. He is very observant. He is very tactful and clever. So one day he was going in a car and he saw Tricky along with his mistress. So Mrs. Pamphry was here taking Tricky for a walk. And this doctor, he looked at Tricky and he could understand that how beta unwell Tricky was. And from a distance, he could see that he was overweight. The reason was that Mrs. Pumphrey must be giving this beta a dog so much of sweets and everything. And he knows his patients very well. James Herriot knows his patients very well. He knows their masters very well. So he could identify that what is the problem that is causing Tricky to be an overweight dog. Let us read from the book and you will mark the different things that I am going to tell in that. बेटा पहले जो वो बॉक्स दिया हुआ है उसमें देखो लिखा है, Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Pampered भी है बेटा. Pampered का मतलब भी बता रही हूँ, over indulgent, और उसको खूब खाना खिलाती है. He falls seriously ill, overeating की वजह से बीमार हो गया, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? इसी स्टोरी में हम पढ़ेंगे. I was really very worried about Tricky this time. बेटा I का मतलब क्या हो गया? I का मतलब हो गया बेटा James Herriot, the narrator of the story. तो ये कहता है मैंने अब की बार ट्रिकी को देखा तो I was very much worried. I had pulled up my car. Pulled up का मतलब लिखो stopped. मैंने अपनी कार रोकी. When I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. उसको देख करके मैं shocked रह गया. अब उसका appearance के दो चार words याद कर लेना. He had become hugely fat, like a bloated sausage. बेटा bloated का मतलब bigger than normal, और sausage का मतलब piece cut of meat. मीट का मांस का टुकड़ा जैसा लग रहा था बेटा, इतना मोटा हो रहा था.
with a leg at each corner. And Tricky was unable to walk properly. अपनी बॉडी का वेट उसके पैर ले नहीं पा रहे हैं, पैर ऐसे हो गए हैं. His eyes bloodshot, लाल आंखें हो गई हैं जरा सी देर से चलने से. रियूमी का मतलब बेटा वाटरी डिस्चार्ज, पानी निकल रहा है आंखों में से. एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, गर्दन इधर उधर भी नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेट आगे देखता हुआ चल रहा है. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और बेटा हाफ रहा है, जीभ बाहर निकली हुई है. लॉल्ड का मतलब हैंगिंग आउट, और बेटा इतना ज्यादा ओवरवेट हुआ है. मिसेस पंफरी हेस्टेड टू एक्सप्लेन. डॉक्टर बेटा ऑब्जर्वेंट है, ही नोज वेरी वेल अबाउट हिज पेशेंट्स एंड मास्टर्स. उतर करके पहुंच गया और कहता है ये क्या हाल बना रखा है आपका इसने. तो बेटा ये जो है मिसेस पंफरी जवाब देती है. हेस्टेड का मतलब वेरी फास्ट, बेटा अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रही है. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब विदाउट एक्शन, कुछ काम कर ही नहीं रहा था. मिस्टर हीरियर, ही सीम टू हैव नो एनर्जी. मुझे लगा बेचारे को एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. मैंने सोचा लैक ऑफ फूड, खाना ठीक से नहीं मिला है. एंड सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास, और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ. डॉक्टर को पता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना क्या बेटा होता है, और कितना हार्मफुल होता है, और कितनी क्वांटिटी में होता है. और मिसेस पंफरी को लग रहा है इतना सा. बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, खाने के बीच बीच में उसे लिटिल एक्स्ट्रा दे देती हूँ ताकि इसको एनर्जाइज्ड फील हो. सम मॉल्ट, बेटा मॉल्ट ग्रेन होता है, जैसे हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं ना, ऐसी मॉल्ट ग्रेन है. कॉड लिवर ऑयल, फिश का ऑयल, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली, ज्यादा नहीं दे रही. मॉल्ट भी खिला रही है, कॉड लिवर ऑयल, फिश का ऑयल भी पिला रही है, हॉर्लिक्स भी दे रही है, और कह रही है ज्यादा कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. बेटा कट डाउन मतलब डिक्रीज. मैंने बोला था आपको थोड़ा कम कर देना, क्या आपने वो किया? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. बेटा relent का मतलब लिखो agree after refusing. Agree after refusing. पहले मना कर दिया और फिर हाँ कर दिया. मैंने बहुत कोशिश करी, पहले इसको मैंने मिठाई नहीं दी, पर क्या करूं बेचारे को इतना ज्यादा ये परेशान हो रहा है, तो मैंने मिठाई दे दी. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. अब मैं कैसे मना करती. ये होता है बेटा इतना पैम्पर करना. I looked down again at the little dog. और बेटा डॉक्टर ने देखा डॉग को, और डॉक्टर बहुत अच्छी तरह जानता है कि ग्रीडी है. ट्रिकी जो है वो ग्रीडी है, वो मना नहीं कर पाता है. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. कभी मना नहीं करता. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और बेटा उसको पता है कि इसको रात को भी उठाओ तो खाना खा लेगा, मना कभी नहीं करेगा. और मिसेस पंफरी बहुत सारी चीजें खिलाती होंगी जो कि मुझे तो पता ही नहीं. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस. अच्छा बेटा अगर तुम बहुत खाना खा रहे हो कोई बात नहीं, कम से एक्सरसाइज ही कर लो. क्या आप जो है वो उसको एक्सरसाइज करवा रही हैं प्रॉपरली? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबागो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेट. बेटा वो कहती है मेरे साथ वॉक पे जाता है, देखिए अभी भी मैं वॉक पे लेके आई हूँ. एक्चुअली हमारा माली जो इसके साथ बेटा गेम्स खेलता था, रिंग थ्रोइंग वो वाला गेम होता है ना, रिंग को फेंक दो, डॉग दौड़ के जाता है लेके आता है. उस गार्डनर का नाम है हॉजकिन. वो बीमार है, उसको लंबागो है बेटा, लोअर बैक में पेन है, इसलिए वो नहीं आजकल इसको रिंग थ्रो कर पा रहा, इसलिए एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं हो रही. आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. बेटा सीवियर का मतलब एंग्री, मैंने थोड़ा गुस्से में उनको बोला. नाउ आई रियली मीन दिस. इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन मतलब एट वंस, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल. You must harden your heart and keep him on a very strict diet.
मिसेस पंफरी रंग हर हैंड्स। बेटा रंग का मतलब होता है ऐसे ट्विस्टिंग, ऐसे ऐसे अपने हाथों को कर रही है बेटा। और ऐसे ऐसे क्यों कर रही है? बहुत एंशियस है, वरीड है, चिंता है। ओ आई विल मिस्टर हीरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं मना नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ। बेटा सेट ऑफ मतलब स्टार्टेड वॉकिंग, हेड डाउन अलोंग द रोड, एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। बेटा रेजिम का मतलब लिखो, रूल। अपना रूल, अपना बेटा ड्यूटी करने के लिए बिल्कुल उसने डिटरमिन्ड होके चल दी। पर डॉक्टर को पता है कि मिसेस पंफरी कैन नॉट कंट्रोल हर सेल्फ। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। Tricky was tottering. Tottering मतलब walking slowly along in his little tweed coat. बेटा tweed coat वो देखो उसका डिजाइन बना हुआ है, आप देख ही सकते हो, सुंदर वाला। He had a whole wardrobe of these coats. बेटा Tricky is a rich dog. क्या क्या सामान है उसके पास, पूरी अलमारी भरी हुई है बेटा उसके कोट से, क्योंकि पैम्पर्ड डॉग है। मिसेस पंफरी इज अ लोनली बट अ वेल्दी वुमन, तो खूब उसके ऊपर पैसा खर्च करती है। फॉर द कोल्ड वेदर अलग बेटा उसके कोट्स हैं। रेन कोट अलग है, जिस दिन वेट डेज होते हैं, बारिश होती है। और बेटा डॉग इतना मोटा है, ही स्ट्रगल्ड ऑन, बड़ी मुश्किल से चलता है। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। बेटा हार्नेस का मतलब वो जो उसकी बेल्ट है, और ड्रूपिंग का मतलब बेंडिंग डाउन, सिर झुका के धीरे धीरे चल रहा है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरी। डॉक्टर जानता था बेटा, इस लाइन का मतलब सुनो, डॉक्टर न्यू वेरी वेल दैट वेरी सून ही इज गोइंग टू बी वेरी सिक एंड शी विल कॉल हिम अप। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। उसे तो पता था इसकी तबीयत और खराब होगी, मेरे पास फोन आएगा, फोन आ गया। मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब लिखो एक्सट्रीमली वरी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। डॉक्टर को फोन पे बता रही है अब तो कुछ भी नहीं खा रहा, मीठा भी नहीं खा रहा, अपना फेवरेट चॉकलेट केक भी नहीं खा रहा। Refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. इतना खाना खा लिया था कि अब तो उसे बेटा ओवर, उसकी भी जरूरत नहीं थी फीडिंग की। अब तो वो जो खा रहा है वो वॉमिट हो रहा है, अटैक्स ऑफ वॉमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, और सारे टाइम लेटा हुआ है। रग मतलब कारपेट, पैंटिंग का मतलब ब्रीदिंग हैवीली। didn't want to go for walks, didn't want to do anything, कुछ भी नहीं कर रहा। I had made my plans in advance. बेटा मैंने जो है वो अपने सारे के सारे प्लान पहले से ही बना रखे थे, डॉक्टर कहता है। The only way was to get Tricky out of the house for a period. और बेटा जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो ये है कि मिसेस पंफरी से थोड़े दिनों के लिए डॉग को दूर कर दिया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और इसको बेटा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, सर्जरी में ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और कम से कम 15 दिन के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, सून का मतलब फेंटेड, बेटा बेहोश होने को तैयार थी। कैसे कैसे मेरा डॉग मेरे बिना रहेगा। She was sure he would pine. बेटा पाइन का मतलब be in pain and die if he did not see her every day. मुझसे नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। But I took a firm line. बेटा determination है, for the sake of the dog, for the benefit of the dog, it is necessary. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. और मैंने सोचा बिना देरी के इसको ले चलो। और बेटा उसने उठाया ट्रिकी को और अपनी कार में ले जाने लगा। डॉक्टर की कार इतनी बड़ी नहीं है, ही इज नॉट सो मच रिच, डॉक्टर की कार इतनी बड़ी नहीं है बेटा। और मिसेस पंफरी ने घर के सारे नौकरों को कहना शुरू कर दिया कि इसके कोट्स रख दो, ताकि इसके कोट चेंज कर करके डॉक्टर साहब पहनाए हॉस्पिटल में। इसको बेटा आप इसके बेड्स अलग अलग रख दो। इसके बेटा हमारे घर में एक बेड होता है, उसके 3 अलग अलग बेड थे, सुबह अलग पे सोएगा, शाम को अलग पे सोएगा, दोपहर को अलग पे सोएगा। बर्तन उसके अलग अलग थे, सारी चीजें बेटा, उसके खिलौने, उसके कुशन, सारे भरती जा रही है बेटा कार में। और डॉक्टर कहता है मेरी कार ओवर फ्लडेड हो रही थी।
बेटा इसने आगे वाली सीट पे ट्रिकी को लेटाया और कार चला दी आधी में ही। और बेटा चला करके जैसे ही आगे निकला तो आगे शीशा होता है, उसमें से पीछे दिखाई देता है मिसेस पंफरी, घर के सारे नौकर रो रहे। और बेटा डॉक्टर जो है वो उसे घर आगे अपना घर ले जाने लगा। बेटा डॉग भी इतना स्वीट है, उसको पता है कि ये मेरे डॉक्टर हैं। तो बेटा जब कार चल दी तो ट्रिकी ने, बिल्कुल उसमें ताकत नहीं है बेटा, फिर भी जरा सी अपनी पूंछ उठाई और हिलाई। और डॉक्टर कहता है तुम्हारे अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं है, फिर भी तुम मेरे लिए ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, बहुत जल्दी तुम्हें मैं ठीक कर। और बेटा उसको प्यार से थपथपाता है। डॉक्टर खुद तो बेटा एनिमल लवर है ही, एनिमल डॉक्टर भी है। घर में भी बेटा इतना बड़ा डॉग लवर है कि घर में उसने अपने पर्सनल कुत्ते 4-5 पाल रखे थे। और बेटा ये घर गया ट्रिकी को गोदी में उठा करके। और जब ये घर गया तो बेटा इसके घर में जितने डॉग्स थे वो इसके पास आ गए, डॉक्टर के पास। और बड़े बड़े डॉग हैं, सारे हेल्दी और फिट हैं। वो बेटा कूदने लगे डॉक्टर को मिलने के लिए। डॉक्टर ने ट्रिकी को नीचे बिठाया, बेटा लेटाया जमीन पर। और सारे डॉग्स बेटा उसे सूंघने लगे, ये कौन सी नई चीज हमारे घर में आई है। और ट्रिकी तो इतना ओवरवेट है कि हिल भी नहीं पा रहा। सारे डॉग्स ने सोचा क्या बेकार सी चीज आई है, और सारे खेलने के लिए चले गए और ट्रिकी वहीं लेटा रहा। बेटा डॉक्टर ने अपने घर में भी एक असिस्टेंट रखा हुआ है, और अपने असिस्टेंट को कहता है इसे 2 दिन तक कुछ नहीं देना खाने को, सिर्फ और सिर्फ इसे पानी मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और बेटा मिसेस पंफरी ने इतने सारे बेड रखे थे कि उस पे सुला देना ट्रिकी को। और डॉक्टर जानता है व्हाट इज बेस्ट। तो डॉक्टर ने बेटा एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड को बेटा उसका बेड बनाया कि जमीन पे सख्त जगह पे सोएगा तो इसकी मसल्स ज्यादा ठीक। अब बेटा आप देखो, but I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings. Wailings का मतलब cry, खूब रो रही है बेटा मिसेस पंफरी, पर वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता। I marched out to the car. बेटा marching out का मतलब walking with confidence, determination, carrying the little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused. घर के सारे नौकरों को उठा दिया, and maids को rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toy, rubber rings, breakfast bowl, beta lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold all the stuff. Hold मतलब बेटा कैरी, इतना सामान मेरी कार नहीं ले जा सकती। I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, beta despairing matlab hopelessly, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और बेटा मैंने कार में पीछे देखा, शीशे में से सारे रो रहे थे और मैं आगे चल दिया। Out on the road, I glanced at the pathetic little animal. Glanced का मतलब looked, pathetic मतलब पुअर लिटिल एनिमल को मैंने देखा। बेटा वो बेचारा गहरी सांसें ले रहा है ट्रिकी। गैस्पिंग का मतलब डीप ब्रीथ, ऑन द सीट बाय माय साइड। आई पैटेड द हेड, बेटा मैंने उसका सिर पैट किया। पैट करने का मतलब होता है टच विद लव। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। बेटा वैग का मतलब टू मूव, बड़ी मुश्किल से बेटा उसने जरा सी पूंछ हिलाई। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you. Kick का मतलब बेटा एनर्जी, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। पर मुझे पता है तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे करना है। बेटा एक्सपर्ट डॉक्टर है, उसको सब पता है। पेज 3 तक खत्म कर ले बेटा, फिर पेज 4-5 करके तो हम नेक्स्ट टर्न पे खत्म करेंगे चैप्टर। एट द सर्जरी, बेटा हॉस्पिटल में द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी। सर्ज्ड का मतलब सराउंडेड, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक। बेटा हाथ में गोद में ट्रिकी है। ट्रिकी ने बेटा गोद में से ही नीचे देखा,
वो सारे डॉग्स जो कि भाव 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 कर रहे हैं। देखो, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक। नॉइजी, वो बेटा बार्क कर रहे थे। पैक का मतलब ग्रुप ऑफ डॉग्स विद डल आईज, एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और बेटा जब उसे जमीन पे रखा तो बेचारा हिला भी नहीं ट्रिकी। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड, स्निफिंग मतलब स्मेल, उसे बेटा जो है उन्होंने स्मेल करी फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर। समझ गए बेटा ये तो अनइंटरेस्टिंग सा है, और उसको इग्नोर करके सारे बाहर खेलने चले गए डॉग्स। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. जैसे सारे सोते थे कार्डबोर्ड बॉक्स में, मैंने एक और बॉक्स बना दिया, वहां सोएगा सख्त जमीन पर। फॉर 2 days I kept an eye on him. बेटा 2 दिन तक मैं उसकी आंखों मतलब बेटा मैं उसको देख रहा था। Kept an eye on him, watching him, giving him no food but plenty of water. सिर्फ पानी पानी पानी। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. 2 दिन तक बेटा उसको खाने को कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। 2 दिन में उसकी बेटा फैट जो है वो थोड़ा कंज्यूम हुआ। अब इसने गर्दन घुमानी शुरू करी, इधर उधर देखना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड, तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर। बेटा तीसरे दिन कम से कम ही स्टार्टेड टू क्राई। When he heard the dogs in the yard, जब इसने बेटा यार्ड मतलब ओपन स्पेस, आंगन में डॉग्स के खेलने की आवाज सुनी, तो इसने भी बेटा थोड़ा सा बोलना शुरू किया, रोना वोना। When I opened the door, Tricky trotted out. बेटा trotted out का मतलब walk with difficulty, धीरे धीरे बेटा चल के बाहर आया। अब इतना ठीक हो गया 3 दिन में। And was immediately engulfed by Joe. और जैसे ही ये डॉग बाहर आया तो घर के पुराने डॉग्स ने इसे घेर लिया। ट्रिकी बेटा छोटा सा है, इतने प्यारे प्यारे उसके सॉफ्ट सॉफ्ट बाल हैं, और सारे डॉग्स के लिए तो वो एक बॉल के जैसा बन गया। सब उसको बेटा पैर से इधर से उधर धक्का दे रहे हैं। एनगल्फ का मतलब सराउंडेड बाय जो। जो डॉग का नाम है द ग्रे हाउंड, उसकी ब्रीड है बेटा ग्रे हाउंड डॉग। एंड हिज फ्रेंड्स, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको बेटा गोल गोल घुमा रहे हैं डॉग बॉल के जैसे। एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सारे भाग गए, ये भी पीछे पीछे भागा। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फैट, क्योंकि थोड़ा सा मोटा है। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. अब याद रखना बेटा, मिसेस पंफरी के गार्डनर का नाम था हॉचकिन, और डॉक्टर के असिस्टेंट का नाम है ट्रिस्टन। ट्रिस्टन ने बेटा तीसरे दिन जब सबको खाना वाना दिया, स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स। बेटा स्लॉप्ड का मतलब मूव ऐसे करके खाना पूरा सबके कंटेनर में रखा। अब ट्रिकी के घर मिसेस पंफरी उसे प्यार से खाना खिलाती थी। डॉक्टर के यहाँ बेटा, डॉक्टर के यहाँ खाना ऐसे नहीं मिलता था डॉग्स। डॉग्स को बांध देते थे, सामने बोल्स रख देते थे, बोल्स में खाना डलता था, और जब खाना सारा डाल दिया सबका एक एक बोल में, यहाँ से डॉग्स को खोला, सारे डॉग्स दौड़ते हुए जाएंगे और जाकर के बेटा फिर खाना खाएंगे। और अगर कोई डॉग रेस में पीछे आ गया तो उसे पता है कि मेरा खाना भी दूसरे खा जाए। तो बेटा ये सारे डॉग्स जल्दी से गए, सारा खाना खत्म कर दिया, बर्तन ऐसे साफ चमक रहे थे बिल्कुल। और ट्रिकी, वो तो बेटा ठुमकता ठुमकता लास्ट में पहुंचा, तो उसे कुछ नहीं मिला खाने। और ट्रिकी को समझ आ गया अगले दिन से दौड़ना पड़ेगा तब खाना मिलेगा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग। हेडलॉन्ग का मतलब बेटा डायरेक्ट, रश का मतलब रनिंग, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तेजी से दौड़ते हैं डॉग्स, और फिर बोल में जाके जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, हर डॉग को पता है कि अगर वो पीछे रह गया, he was liable to have some competition for the last part of his meal। और बेटा लास्ट में थोड़ा सा खाना बचेगा, इस वजह से पहले ही जाओ और अपना खाना खा, खाना खाने से पहले रेस लगा। बेटा अब हम ये बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम ग्रामर निकालो। हो सकता है मुझे मीनवाइल तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाए इस चैप्टर के, तो फिर मैं बाद में लिख पाऊँ। पर अभी यू ओपन योर रजिस्टर्स, यू टेक आउट योर बेटा
grammar portion and let us write down some of the questions. बेटा पहले जैसा आजकल हम कर ही रहे हैं मैं उसी के हिसाब से करवाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही एक्सरसाइजेस, उसके बाद फिर आप जो है डिटर्मिनर्स, टेंसेस, बाकी सब। तो आज का बेटा लिखो फर्स्ट सेंटेंस, स्लो एंड स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हेडिंग डालें। स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस। ब्रैकेट में लिखो विन विंस। विन विंस। सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे बेटा, विन्नी एज वेल एज सिन्नी। विन्नी एज वेल एज सिन्नी dash to be blamed. Dash to be blamed. ब्रैकेट में लिखो is are. ब्रैकेट में लिखो is are. बेटा थर्ड सेंटेंस लिखेंगे, each of the apples. Each of the apples dash sour. Dash sour. SOUR. ब्रैकेट में लिखो is are. Is are. फोर्थ सेंटेंस लिखेंगे बेटा, द किंग विद हिज जनरल्स। द किंग विद हिज जनरल्स डैश अरेस्टेड। डैश अरेस्टेड। ब्रैकेट में लिखो बेटा was were। was were। बेटा नेक्स्ट सेंटेंस लिखिएगा। अब जो हमारा सेंटेंस है बेटा वो डिटर्मिनर का है। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग द रिच मैन, every morning the rich man would steal dash glances. Every morning the rich man would steal dash glances at the widow, at the widow when she came out, when she came out to do her work in the garden. To do her work in the garden. बेटा ऑप्शंस में लिखो few, a few, a little. Few, a few, little. नहीं बेटा, few, a few, a little. सेकेंड सेंटेंस डिटर्मिनर का लिखो, dash books are missing from the library. Dash books are missing from the library. बेटा ऑप्शंस में लिखो much, any, some. Much, any, some. बेटा नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, ये टेंसेस वाला है। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट्स, इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर, फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर डैश दिस इवनिंग, डैश दिस इवनिंग। बेटा ऑप्शंस लिखो, was arriving, are arriving, is arriving, were arriving. Was arriving, are arriving, is arriving, were arriving. बेटा नेक्स्ट सेंटेंसेस भी टेंस का है, टेंसेस का है।
at least half an hour, at least half an hour of exercise, at least half an hour of exercise a day, a day did wonders, did wonders for, for everyone's health, for everyone's health. At least half an hour of exercise a day did wonders for everyone's health. बेटा आप लिखो identify the error and correct. Identify the error and correct. बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी रह रहा है, वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम 2 दे दूंगी आपको. अभी पहले यही कर लो और इसको डिस्कस कर लेते हैं.